What is the definition of the spectroscope? So spectroscope is the study of the interaction between the electromagnetic radiation with the matter. So first question is in your mind, what is the electromagnetic radiation? The electromagnetic radiation is the combination of the electric field and the magnetic field which is perpendicular to its position. Means that if an electric field is going upward, then the magnetic field is going to downward. What is electromagnetic spectrum? Electromagnetic spectrum is about the electromagnetic waves. Waves like gamma rays, I rays, visible rays, X-rays, UV rays, and also radio waves and microwaves. Radio waves and the microwaves are the waves that is used in the mobile phones, and the I rays and means the infrared is used in the remote controls or remote controls, and also the visible light that we can see is called about the range is 4,000 to 7,000 angstrom. And then we discuss about the X-rays. X-rays is used in the, if we have to see the atom, then we use the X-rays, and if we have to see the nucleus, then we use the gamma rays. And then we discuss about the light. Light is composed of two characteristics, that is the monochromatic light and the polychromatic light. The two types, that is monochromatic and the polychromatic. As we know that the mono is means the one and the chromatic is means the color. Means that the one color wavelength is called the monochromatic light. And if we discuss about the polychromatic, poly means many and the chromatic is the color. Means that many colors of the wavelength is called the polychromatic light. And if we see about the example, the monochromatic light example is like a laser. When a laser is passed through a prism, it's called a monochromatic light. And if we discuss about the polychromatic light, its example is about the sunlight or any bulb or any that is we can see visible light like that. So it's called the polychromatic light. So then we discuss about the spectrum. As we all know that when a light passes through a prism and it's spread through a 7 color, is called the spectrum. And the spectrum is also characterized into the two types. It's called the continuous spectrum and the line spectrum. Continuous spectrum is like that. Is spectrum in which the 7 colors are diffused. Means that the spectrum ऐसा spectrum जिसमें जो light जो 7 colors को diffuse मतलब mix हो गए. For example, like ये yellow color है तो यहाँ पे red है तो यहाँ पे yellow होगा. मीन्स यहाँ पे कोई भी मतलब वो नहीं होगा, कोई बैंड नहीं होगा, कोई मिक्स कलर्स नहीं होंगे. और ऐसे ही कोई एग्जांपल है वो रेनबो में. हम देखेंगे रेनबो के पास अगर कोई हम देखते हैं कि जो रेनबो के पास कोई भी कलर्स होते हैं तो उसको बैंड नहीं होता, मतलब कोई भी उसके पास लाइन नहीं होती. इसके एग्जांपल यही है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के पास कोई मिक्स नहीं होती कलर्स, और उससे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहेंगे. और लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें, लाइन स्पेक्ट्रम में वही पता चल रहा है कि लाइन कौन होता है, इसमें लाइन आ जाए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी लाइट है जिसमें जो पास करें प्रिज्म के साथ और वो ऐसे डिफ्यूज हो जाएगी, उसे हम लाइन स्पेक्ट्रम कहेंगे. और लाइन स्पेक्ट्रम ऐसे क्यों हुआ, क्योंकि देखो अगर फॉर एग्जाम्पल ये एटम है तो एटम को अगर हम हीट करेंगे तो जो एटम होगा उसकी जो रेडिएशन निकलेगी इसको हम प्रिज्म से जो ट्रांसफ़र करेंगे इससे, और जो भी उसको ऐसा जो भी रेडिएशन आएगी उसको हम यहाँ पे डालेंगे तो वो लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा. और लाइन स्पेक्ट्रम इज कैटेगराइज्ड इनटू द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड द इमिशन स्पेक्ट्रम. अब एब्जॉर्प्शन इन स्पेक्ट्रम से पता चले कि एब्जॉर्प्शन में कोई भी चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, और इमिशन से पता चले कि इमिशन में कोई भी चीज़ खारिज हो रही है. एब्जॉर्प्शन में ये होगा कि जैसे हमें अभी पता चला कि अभी लाइंस हैं तो वहाँ पे लाइंस होंगी, लेकिन पहले कलर्स होगी फिर एक लाइन बैंड हो जाएगा. ऐसा हो गया कि जो उसके जो जैसे प्रिज्म से अगर पास करेंगे लाइट को तो वो ऐसे हो गए, पहले कलर्स होंगे फिर एक बैंड आ जाएगा, फिर कलर्स होंगे देन फिर एक बैंड आ जाएगा. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर हम कोई भी बल्ब ले रहे हैं, कोई भी वाइट लाइट ले रहे हैं, उसको हमने एक मतलब जो कोल्ड गैस है उससे हमने पास किया. कोल्ड गैस के पास करने के बाद जो भी इसकी रेडिएशंस निकलेंगी उसको हमने प्रिज्म से पास किया, और जो प्रिज्म की जो भी रेडिएशन निकलेगी उसको हम यहाँ पे करेंगे तो वो कलर रिफाइंड होगा. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो कोल्ड गैस है ना वो जो एक मतलब एडवांटेज आते हैं कि भाई हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मतलब एक सूटेबल अमाउंट पे आ जाए. अगर वो लोअर शेल में है तो हायर शेल में आ जाए, अगर हायर शेल में तो लोअर शेल में आ जाए. इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि पहले कलर हो गया, फिर बैंड हो गया, फिर कलर्स फिर बैंड हो गया. और अगर इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे तो इमिशन स्पेक्ट्रम ऐसे होगा कि जो जैसे यहाँ पे हम
कलर्स हैं पहले वो तो नहीं आएंगे, पहले बैंड आ जाएगा, पहले ब्लैक बैंड आ जाएगा, फिर कलर्स आएंगे, देन फिर ब्लैक बैंड आ जाएगा, फिर कलर्स आ जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम कोई भी गैस को हीट करेंगे और हीट करने के बाद उसको प्रिज्म से ट्रांसपोर्ट करेंगे और फिर जो रेडिएशन निकलेगी उसको ऐसे होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो जाते हैं, वो एक्साइटेड हो जाते हैं। क्योंकि एक्साइटेड हो जाते हैं मतलब कि जैसे ये एक न्यूक्लियस है, एटम है, सही है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन है, वो एक्साइट कोई भी रेडिएशन है यहाँ से, उसको मतलब एक्साइटेड हो गया उसकी। अब एक्साइटेड हो गया तो उसको स्टेबिलिटी चाहिए, तो स्टेबिलिटी की वजह से वो जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे मूव हो जाएगा, मतलब लोअर टू दी हायर हो जाएगा। अब वो स्टेबल तो नहीं होने की उसकी जो एनर्जी थी वो लो हो गई, तो एनर्जी लो होने की वजह से उसको चाहिए वो स्टेबल भी हो, जैसे हम चाहते हैं कि हम स्टेबल हो वैसे ही। तो जो एनर्जी है वो यहाँ पे आ जाएगी, जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा, और फिर जो एनर्जी जिसने जो ली थी वो उसको वो क्या करें, इमिट कर देगा, और जो इमिट होगी एनर्जी होगी वो यहाँ पे हमें शो होगी।